Hello, my dear. Very good morning. You're most welcome in class 11th accountancy. Yes, today I would like to tell you machinery disposal account. We are on the topic of depreciation. So yesterday you have learned preparing the provision for depreciation account, how the provision for depreciation account is maintained, treated. Now, yesterday, just machinery disposal account, provision for depreciation account, and the asset account by the question number 34 in your textbook. Now this one is the question given. ABC Limited purchased on 1st April 2006 a small plant for ₹1 lakh. On 1st October 2006, same year, just an additional plant was purchased costing ₹50,000. On 1st October 2007, the plant purchased on 1st April 2006 means first plant having become obsolete, means बेकार हो गया, was sold for ₹40,000. Depreciation is provided at the rate of 10% per annum on original cost on 31st March every year. The assessment year is April to March. So the plant account, provision for depreciation account, and plant disposal account for the years 2006 and 2007. 2 years. 2 years plant account. First, we have to prepare the plant account, then prepare the provision for depreciation account, then we prepare the plant disposal account. How this one is? Because of that, when the provision for depreciation is maintained, just the asset account opened on original cost, historical cost I meant to say. So, come to the point. First, we have to prepare the plant account this way. Plant account, draw the line of pleasure, amount and date. Date necessary. Date is the necessary item. Just this way you can write the column, draw the column. Date, particulars, amount, date, particulars, amount, plant account, debit, and this one is credit. So my dear children, you can see the information given, question in my hand.
Now ABC Limited purchased on 1st April 1/4/2006 to bank. Plant account debit to bank. Plant number first. The amount 1 lakh. Just you can put here 1 lakh rupees. 1 लाख लिख देंगे यार. Then just the plant purchased, additional plant purchased on 1st October 1/10/2006, yes, to bank. This one is the second plant. Just we can write 50,000. End of the year on 31st/3/2007 March. Our total 1,50,000. Just by balance. You can write by balance 1,50,000. This way you can write 1,50,000. Next year, just enter in next year 1/4/2007 to balance 1,50,000. 1,50,000 and the plant of the first year that is given. First plant was sold on was sold on 1st October 2007. 1st October 2007 means April, May, June, July, August. 1/10/2007. Just this one is sold, disposed. This plant is being disposed on 1st October 2007. Means by plant disposal account. By plant disposal account. Disposal account. The cost of the first plant is being sold 1 lakh. Sale cost, and then 31st March 2008 by balance rupees 50,000. 1,50,000. 1,50,000. मेरे कहने का मतलब ये है बेटा कि जो ये प्लांट आपका डिस्पोज किया जा रहा है उसकी कीमत 1 लाख थी, तो 1 लाख रुपए हमने प्लांट डिस्पोजल अकाउंट में डाल दिया. अब हमारे पास जो बचा है सेकंड प्लांट बचा हुआ है, तो 1st April 1/4/2008 टू बैलेंस 50,000 वी कैन राइट, क्योंकि हमारे पास यही बचा हुआ है. अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कास्ट. अब हम बनाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. यहां पर फिर देखिए उसी तरह से
आपने कॉलम खींचा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेट, अमाउंट का कॉलम आपने बनाया और उसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, particulars, amount. This one is the debit and this one is the credit. So, plant purchase on April 2006. It is taking place April 2006 and the end of the year, that is 31st March 2007. जो आपका साल खत्म होगा बेटा, वो कब खत्म होगा? 31 मार्च 2007 को हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 31st March 2007 by depreciation. By depreciation, फर्स्ट प्लांट का अलग कर दीजिए, सेकेंड प्लांट का अलग अलग करके जोड़ करके आप फर्स्ट प्लांट का होगा आपका, फर्स्ट प्लांट 1 लाख और 10% इक्वल टू 10,000, राइट, 10,000। फर्स्ट प्लांट आपका 1 अप्रैल को खरीदा गया है तो पूरे साल का लगेगा 10,000 एंड सेकेंड प्लांट 50,000 आपका 1/10 मतलब 1 अक्टूबर 2006 को खरीदा है तो अक्टूबर से लेकर के आप मार्च तक जोड़ें, कितने महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ तक। तो 50,000 2,500 अब ये जोड़ दिया आपने 12,500। दोनों प्लांट का डेप्रिसिएशन मिला करके आपका 12,500 रुपए हुआ। अब ये बैलेंस कर लें आप, 31/3/2007 टू बैलेंस 12,500। 12,500। Now here you can write 12,500। अब बिगनिंग आपका नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2007 बाय बैलेंस, बाय बैलेंस 12,500। फर्स्ट प्लांट का आपका है 10,000 प्लस सेकेंड प्लांट का 2,500। ये फर्स्ट का हो गया और ये सेकेंड का हो गया। इस तरह से आप करेंगे तो आपका कभी प्रश्न गलत नहीं होगा। अब आप देख रहे हैं कि आप 1 अक्टूबर को जो पहला प्लांट है उसको आप बेच दे रहे हैं, तो आपका अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक, अप्रैल से लेकर के अक्टूबर के पहले तक का कितना महीना होता है? अप्रैल,
मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने। तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकालेंगे आप। 110 2007 by depreciation। फर्स्ट प्लांट का आपका हो गया 6 महीने, 1 साल का 10,000 है तो 6 महीने का 5,000, 5,000। क्लियर? अब ये आप एक चीज का और ध्यान देंगे, उसके बाद ये जो प्लांट है ये डिस्पोज किया जा रहा है, ये बेचा जा रहा है, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या करेंगे हम, पूरा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इसका कितना हो रहा है, 10,000 और 5,000, 15,000, 1, 10, 1 अक्टूबर 2007 टू प्लांट डिस्पोजल अकाउंट, टू प्लांट डिस्पोजल अकाउंट, डिस्पोजल अकाउंट में आपने ट्रांसफर कर दिया। कितना है, 10,000 और 5,000, 15,000। अब सेकेंड प्लांट का डेप्रिसिएशन आप चार्ज करेंगे, पूरे साल चल रहा है वो, तो 31 मार्च 2008 बाय डेप्रिसिएशन ऑफ सेकेंड प्लांट। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है 15,000 है, तो इसका होगा 5,000। 5,000। नाउ टोटल 22,500, 22,500। अब बैलेंस आ जाएगा 31 मार्च 2008 को टू बैलेंस आपका अमाउंट हो जाएगा 7,500। अब यहां पर आ जाएगा 1/4/2008, 1 अप्रैल 2000 बाय बैलेंस 7,500। लीजिए आपका एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बन गया। अब आइए मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं। यहां पर ये देखिए कॉलम आप खींच लीजिएगा, बस इस तरह से मैं डेट डाल करके बना दे रहा हूं। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, प्लांट डिस्पोजल अकाउंट, प्लांट डिस्पोजल अकाउंट। डिस्पोजल अकाउंट डेट 1/10/2007, 1/10/2007 to plant. Because of that plant disposal account to plant disposal account to plant आपका कितने का है, 1 लाख। टू आपने डेट डाल दिया और आपने लिखा टू प्लांट इक्वल टू दिस वन इज द अमाउंट कॉलम, सपोज दैट 1 लाख। अब इसी डेट को 1
10/2007 को आपका आ रहा है बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना हुआ है इसका 15,000। 15,000। आपने प्लांट जो सेल कितने में किया है? प्लांट जो सेल हुआ है उस तारीख को was sold for ₹40,000, 40,000 में बेचा गया। तो आपने यहां पर बाय बैंक 40,000। अब आप देखेंगे कि आपके प्लांट पर कितने का आपका नुकसान हुआ कि फायदा हुआ। प्लांट पर नुकसान हुआ कि फायदा हुआ। तो हमारे प्लांट की कास्ट कितनी थी? 1 लाख रुपीज। और इसका हमने जो डेप्रिसिएशन जितने दिन हमारे वहां चला है कितना चार्ज किया हमने? 15,000। ये डिस्पोजल अकाउंट में दिखा रहा माइनस 15,000। अब बेचते वक्त हमारे प्लांट की कीमत कितनी हो गई? 85,000। अब 85,000 बुक वैल्यू है हमारे प्लांट का और हम बेच रहे हैं इसे 40,000 रुपए में। तो 40,000 में बेचेंगे तो हम वैल्यू से कम में बेचेंगे तो हमारा क्या होगा? नुकसान होगा। कितने का भाई? 40,000 माइनस कर दिया हमने इसमें से, तो आपका आया 45,000। 45,000 just by loss on sale of plant, by loss on sale of this one is the amount column. Now you can total this one 1 lakh इस तरह से बेटा प्लांट डिस्पोजल अकाउंट भी बनता है। 3 अकाउंट आपको बनाने पड़ते हैं इसको करने के लिए और आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। इस प्रकार डेट का इसमें बहुत ध्यान देना जरूरी होता है, तभी आप कर पाएंगे। थैंक यू फॉर द डे।